You have seen the solar panels. Solar panels basically generates DC voltage or DC voltage plus you can say it is DC power. From solar panels, following cables are used as a input to inverters. Inverters works converted DC into AC. As our basic load is AC, so we use AC supply instead of DC. These cables are strings. Every inverter has 3 strings as its input. In each string 22 panels are connected in series, and these 3 strings are in parallel to inverter. 22 panel strings, that means 66 panels input of inverter, and every solar panel has 270 watt capacity, and that is the DC side input, and that is communication cables. Communication cable is RS485 communication we use to observe our generation on computer or online using internet everywhere in the world. And next is DC cables, that means AC into DC conversion in that inverter. This inverter has 17 kilowatt capacity, and its input is 1000 volts maximum input voltage, and output voltage is 400 volt phase to phase plus neutral. So these cables which are coming into this panel are parallel, right? Like these three? Yes, these are in parallel, and the 22 which 22 are series in series. We can use different series parallel combination depending upon our system, our inverter capacity, our system voltage. Let's say 1500 volts. In 1500 volts we can add more panels in series, but in this we are using 1000 volts as a system voltage, so 22 panels we have connected in. So right now we are using like 850 volt and we have capacity of 1000. Yes. So we can add up solar panels. You can add up, but keep less than 1000 volts, not above. It will cause installation failures. In DC, you know that DC voltage is more dangerous than AC voltage. Yes, That's why we connect less than 1000 volts. so they have like protection system like overcurrent protection and bidirectional. There are 2 types of protection. In each solar panel, there is a protection of reverse polarity, which is installed in the connection box of solar panel. It will prevent the reverse polarity protection. Basically, if anybody connect the plus minus leads, then it will not damage the inverter, but diode will be damaged. And next protection is inverter self protection of inverter. It has protection of voltage, over current from DC side or from AC side, installation failure. All protection have anti-island protection. These 3 to 4 type protection inverters have. In case of any fault, inverters will trip itself automatically. That means identification plus interruption, both functions have inverters. And these are 17 kilowatts each capacity of inverter, and total quantity is 7. That means 119 kilowatts inverters are installed in our system. And next, AC supply is parallelly of 3 inverters is connected to our main cable. All right, and main cable is 3-phase 4-wire cable, and that is connected to our grid. At that point, our load, grid connection, and our solar generation points are connected in parallel. If our units exceed in production, let's say our power exceeds then our load, then our units are exported to grid. In case our load is connected but our generation is low than load, then we import units from grid, and at the end of month we export units plus minus import units, then we have to pay the bill according to that. So there is term for this. Bidirectional metering. That is called bidirectional metering. Normally, you have
observed or listened the net metering from NEPRA side for residential. In residential 5 kilowatt and above net metering is allowed up to 1 megawatt. That means if you want to install one 5 kilowatt system for your house, you have to apply for net metering, and your generation and consumption will be observed by net metering meter, and then you have to pay the bill, and there is a substitutional saving in energy consumption, and you have zero bill at the end of month. Sir, is there any kind of software monitoring like on the computer, like where we can? Yes, every inverter has its own software, and next is some customized data logger monitoring equipment are available. You can see that is a data monitoring system. That is only communication system. It works with its generation, its values, voltage, current, and then it feed into our personal computer, and then can be connected into through internet, and available online monitoring option is also available, remote monitoring or online That monitoring. communication system will be on some backup power, like if there's an electricity failure, then that system should be operational in those kind of situations. When electricity failure, then our system also fails due to anti-islanding protection. As this is an on-grid system, so if power failure, it has to be stop the generation. Okay, sir. Anti-islanding protection is installed. That means if utilities failed, then this system also fails. Unless if we have a backup like generators, then we can use up solar power. But in on-grid, normally we use it with grid. So there are power losses. Power losses, we have inverters, its capacity efficiency is 96.5%. 4 to 3% inverter efficiency reduction, and solar panels have efficiency of 16.5, which have currently installed. Normally available 22% efficient available now in market. That rating is 550 wattage plus up to 610, 620 watts solar panels are available in our Pakistan nowadays. Sir, can we see where it is connected to the grid, like somewhere near? It's something distant, but it has the same operation. No, only a single cable is going, 3-phase 4-wire. Just like in that DB, it is connected in grid side DB. There is no specialty, only 3-phase 4-wire cables, just like WAPDA cable, 3-phase 4-wire, and that solar, and then out our load connected. That switching of export and invert, that is automatic. Everything. Yes, that is through bidirectional meter, energy bidirectional meter. That is automatic. No, any monitoring does not required. Only take readings at the end of month, initial, final, then multiplication factor according to city. Then we find the consumption of our import units and export units. Then we add import export. Net units are billed to our according to our generation consumption plus import from grid. Normally available in today, you can get 4 to 5 years backup plan. 4 to 5 years backup recovery of your investment is possible due to extra high rates of WAPDA. मतलब इसमें जो है ना 4 से 5 साल जो है ना हमारी हो सकती है रिकवरी हो जाती है, क्योंकि आजकल यूनिट रेट जो है ना काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो इस वजह से जो है हम मतलब नॉर्मली 5 साल में आपका पे बैक पीरियड शुरू हो जाता है। टैक्स तो नहीं देना पड़ता, जिस तरह होता है हमारे 5,000 यूनिट आए हैं उसके साथ दूसरे टैक्सेस भी होते हैं, तो ये तो हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, इसके साथ कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगती है? नहीं, इसमें यह है कि अगर हमारी कैपेसिटी जो है ना, लेट्स से कि हमारा लोड भी साथ कनेक्ट है, हम जनरेट भी कर रहे हैं, तो उसमें यह है कि फिर हमें टैक्स नहीं पड़ता। फिर हमें जो यूनिट हमारा बिल होगा, लेट्स से कि सोलर से पहले हमारा यूनिट का बिल आ रहा था 1000 यूनिट्स, ठीक है, अभी हमने सोलर लगा लिया तो 900 यूनिट हमारे जो है ना वो हम सोलर से जनरेट कर रहे हैं, 100 यूनिट का हमें बिल आ रहा है, तो 100 के हिसाब से हमें टैक्स उतने ही पड़ेंगे। उसके रिस्पेक्ट से होगा
हाँ जी जी। और अगर कई दफ़ा होता है कि एज आ IPP अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं कि आपने सिस्टम लगाया और आप ग्रिड में जो है वो सोलर जनरेशन दे रहे हैं, तो उसमें जो है वो फिर एक टैरिफ जो है ना वो डिसाइड होता है, जिसमें AEDB है, नेपरा है, और उसके साथ आपका पावर परचेज एजेंसीज जो है ना वो इन्वॉल्व होती हैं, जो आपका यूनिट्स डिफ़ाइन करते हैं कि आप इतने यूनिट जो है ना इतने रुपये पे वापडा आपको बिल करेगा, तो वो दैट्स समथिंग एल्स। और सर इसकी प्रोडक्शन दिन के टाइम होती है, तो शाम के टाइम जो 7 से 10 तक होता है, इसमें मतलब यूनिट कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, तो आप जी। जब उनसे लेते हैं, हाँ, उससे इसका कोई मतलब वो पे तो नहीं करना पड़ता इसका? देखिए वो ऑफ पीक और पीक आवर्स होते हैं, ठीक है। जो हमारी सोलर की जनरेशन है ना वो हमेशा ऑफ पीक आवर्स में ली जाती है, क्योंकि ये सुबह से लेकर शाम तक ऑफ पीक आवर्स में जनरेट करता है। पीक आवर्स में तो आपका लोड ही कनेक्ट होता है, तो उसमें यह है कि अगर हमारे पीक आवर्स के यूनिट ज़्यादा होंगे तो हम फिर उसको पे करेंगे यूटिलिटी को, मतलब आपडा को। लेकिन यह है कि पीक आवर्स में नॉर्मली हमारे जिस तरह हेड ऑफिस है तो ये तो ऑफ होता है, 5 बजे तक हमारी वर्किंग है, उसके बाद जो है हमारी जनरेशन अगर हो भी रही है तो वो ग्रिड में जा रही है, लोड हमारा ऑफ है। Sir, what kind of safety precautions are followed? Like I can see there are few certifications labeled behind like ISO and OSAS. So how they That every it's in this system we follow the IEC standards. IEC? In IEC standards we ensure to avoid short circuiting and over voltages, over currents, and that IEC certificate we follow. That is ISO 9001 2015. These are our organizational certificates. These are not particular to solar system. It is our organizational. We have production factories, in that we implement that safety standards. ठीक है, उनको भी साथ। जी जी बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी जो हो चुकी है स्टोर भी कुछ कर रहे हैं या बस? नहीं, ऑनलाइन ऑन ग्रिड स्टोरेज के लिए ना बैटरी पूरा बैंक चाहिए होता है, उसकी ना कास्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। वो नॉर्मली आपकी रिकमेंड है आपका कोई शाम के टाइम ये फिर क्या करते हैं? शाम बस फिर हम ग्रिड इस्तेमाल करते हैं अगर हमें रिक्वायर हो। नहीं, पहले आपको पूरा बताएंगे, फिर इधर आओ। ठीक है। ये न्यू आने वाले तो खड़े हैं। सही से ठीक है। बाकी जो उस बस के हैं वो मतलब हो गए। सर हम कुछ लड़के रह गए हैं यहाँ पे इन्वर्टर रूम पे आने के। आपको फिर कितने हैं? यार तो होंगे फैजान उनको बुला लेना यार, कितने रह गए थे लड़के? हमाद इनके साथ ही ना करा दें फिर आपको भी, या आपकी बस तो नहीं जानी अभी? सर बस ही वही निकलनी है निकलनी है। पहले वाले। सर कितनी देर का काम है? चंद पहले तो इनको दिखाएं सोलर इन्वर्टर, आप इजी फ्री होके देखें, आप साइड पे स्पेक देखें, कोई मसला हो पूछिएगा। तीसरी नहीं आई। ये दूसरी वालों को चाय नहीं मिली। दो ही बस मैंने मैसेज किया, मैंने कहा बच्चे कुछ रह गए इसका मतलब नहीं रहे सारे। चल थोड़ा खुले हो जाए, अभी सारी ये डेमो देंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद कंट्रोल रूम में। यार इनको कभी देखा है कि आप वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में तो नहीं थे? हाँ मैं इधर वहाँ नोबल में इंटर्नशिप करता रहा था, वहाँ नोबल केमिकल। सही सही ठीक हो गया, पूरे बोला ठीक है, मैंने कहा देखा हुआ है आपको। सही सही। सर ये वैसे भी ऐसा जो एक दफ़ा देख ले भूलते नहीं। चलो ये भी अच्छी बात है। चुप कर जो अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें हमारा 125 किलोवाट सिस्टम है सोलर का, ठीक है। जो हमारा सोलर जनरेशन है बेसिकली 2-3 टाइप्स की होती है। एक मतलब PV जनरेशन है जिसको बेसिकली हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और दूसरी टाइप्स ये है कि उसकी हम सोलर की जो हीट है उसको ले के हम
उसके स्टीम वगैरह बना के उसको अगर हम हॉट वाटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि सोलर गीज़र लगे होते हैं, मतलब उसके लिए भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारा जो यहाँ पे है ये हमारा बेसिकली पीवी जनरेशन है, फोटोवोल्टिक जनरेशन। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है कि सोलर जो ही अपनी रेडिएशंस है वो जब सेमीकंडक्टर पे मतलब फॉल करते हैं, उससे जो है ना वो उनके इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बनती है। ठीक है, उस मूवमेंट से जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये हमारा 125 किलोवाट का जो है इसकी कैपेसिटी है इंस्टॉल्ड। ठीक है, इसमें जो है पैनल्स के हवाले से बात करें तो 2-3 किस्म के पैनल्स हैं, जिसमें मोनो क्रिस्टलाइन है, थिन फिल्म है और उसके साथ जो है पॉली टाइप्स है। नॉर्मली जो एफिशिएंट है सबसे ज़्यादा वो मोनो फिल्म जो है ना वो ज़्यादा एफिशिएंट है। उसके बाद जो है वो फिर पॉली आती है, उसके बाद जो है थिन फिल्म जो सोलर पैनल है उसके। तो हमारे जो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये भी मोनो टाइप के पैनल्स जो है ना वो इंस्टॉल्ड है। ठीक है, इसका जो हर पैनल है उसकी एक स्पेसिफिक वाटेज होती है, उसी हिसाब से वाटेज को लेके फिर उसके वोल्टेज और करंट जो है ना वो फिर डिसाइड होता है। तो हमारे जो फील्ड में लगे हैं वो 270 वाट का पैनल है एक, जिसकी जो VOC है वो 32 वोल्ट्स है और जो उसकी ISC मतलब शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो 8.5 है, 5 एम्पियर्स। ठीक है, तो जो पैनल्स है इसको फिर हम सीरीज़ पैनल में कनेक्ट करते हैं ताकि हम एक उसकी एक स्ट्रिंग बना सकें। ठीक है, इतनी केबल नहीं है कि हर इंडिविजुअल पैनल से हम केबल लेके इन्वर्टर की इनपुट तक आएँ। तो उसके लिए जो हम स्ट्रिंग एक बनाते हैं जिसमें मुख्तलिफ पैनल्स को सीरीज़ और पैरेलल दोनों कम्बिनेशन में हम ऐड कर सकते हैं। तो जो इसकी एडिशन है वो बेसिकली डिपेंड करती है हमारे सिस्टम वोल्टेज पे। नॉर्मली जो अवेलेबल सिस्टम वोल्टेज हैं वो 1000 वोल्ट DC है और आजकल जो है वो 1500 वोल्ट DC भी चल रहा है। तो एट दैट टाइम जो है हमारा जब हमने लगाया था, ये 2014 में सिस्टम हमारा इंस्टॉल हुआ था, उस टाइम जो है नॉर्मली 1000 वोल्ट DC जो है ना हमारे सिस्टम वोल्टेज थे। जो बेसिकली 1000 वोल्ट DC सिस्टम है ये भी आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो होती है इन्वर्टर्स पे, कि जो आपका ईच इन्वर्टर है वो एक सिस्टम वोल्टेज देता है कि आप इसकी मैक्सिमम इस पे इनपुट पे वोल्टेज है ना वो आप कितने दे सकते हैं। तो नॉर्मली जब 1500 करंट चल रहा है, मतलब 1500 VDC हम एक इन्वर्टर की इनपुट पे दे सकते हैं। तो उसी हिसाब से हम फिर जो पैनल्स हैं उनको सीरीज़ में जब ऐड करेंगे तो वोल्टेज जो है डेफिनेटली हमारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो हमारा करंट सिस्टम है इसमें जो है हमने 22 पैनल जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट करके उससे हम जो है वो एक स्ट्रिंग बनाते हैं, वो हम फिर अपने इन्वर्टर में फीड करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा सिस्टम है जिसमें DC साइड आपकी सोलर पैनल्स को मतलब लेंगे, उसके साथ जो इन्वर्टर है वो DC को AC में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और इन्वर्टर के बाद जो है फिर हम वही जो AC सप्लाई है उसको हम ग्रिड में सप्लाई करते हैं। जो ग्रिड में हम सप्लाई करते हैं उसके साथ हम जो है बाई डायरेक्शनल मीटर लगाते हैं। ठीक है, जो बेसिकली हमारे जितने यूनिट्स हमने ग्रिड से इंपोर्ट किए और साथ साथ हमने एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे हमारा लोड नहीं होगा या हमारा लोड ऑफ है जिस तरह छुट्टी है या इस तरह का, तो हमारे जो जनरेट होंगे वो हम मतलब ग्रिड में एक्सपोर्ट यूनिट्स करेंगे। तो इन दोनों यूनिट्स को फिर हम एट द एंड ऑफ मंथ जो है वो हम फिर नेट मीटरिंग जो है ना हमारी उसके साथ प्लस माइनस यूनिट्स करके तो हमें जितना बिल है वो हम पे करते हैं। लेट्स से कि हमारे यूनिट से लेट्स से कि हमने 10,000 यूनिट्स जो हैं वो जनरेट किए हैं और हमारा यूज़ था वो 15,000 यूनिट्स था, तो 5,000 यूनिट्स का हम बिल पे करेंगे। और जब हमारा कंजप्शन जो है वो 5,000 यूनिट्स की होगी और 10,000 हमने जनरेट किया होगा तो 5,000 हमारा जो है वो उनके ग्रिड में जो एज आ मतलब हमारा एज आ डेब अपना क्रेडिट के तौर पे अवेलेबल होगा। तो वो हम कमिंग मंथ्स में इस तरह हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो बेसिकली हम इस तरह करते हैं कि एट द एंड ऑफ ईयर जो है ना हमारी जो हमारा एनर्जी मिक्स आ रहा होता है ना, एनर्जी की हमारी कंजप्शन एवरेज कितनी है पूरे साल की, तो सिस्टम इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि हमारी जनरेशन कंजप्शन मैच हो जाए पूरे साल के लिए। तो इससे जो है ना हमें एक ग्रीन एनर्जी बेसिकली आप कह लें कि सोलर जनरेट, क्योंकि इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन नहीं है। जिस तरह के नॉर्मली आप देखें कि डीजल हो गया या फर्नेसेस ऑयल है, कोल है, उससे जो आप एनर्जी जनरेट करते हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन होती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो इसके लिए जो ग्रीन एनर्जी है उसमें बेसिकली हाइड्रो आपकी एक है ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन है कि वो भी उसमें भी मतलब आपकी पोल्यूशन का इशू नहीं है। और दूसरा जो है वो हमारा सोलर या विंड है, तो उसमें भी ना आपको कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन जो है ना वो नहीं है। क्योंकि आजकल आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो है वो फोकस कर रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जाया जाए, कार्बन एमिशंस को कम से कम किया जाए। तो उसके लिए जो है ना ये एक अच्छा सोर्स है पाकिस्तान में। ठीक है, जब हमने सिस्टम लगाया था तो उस टाइम इतना सोलर का ट्रेंड नहीं था। तो
उसके हमारे लगाने के बाद बहुत सी जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने काम शुरू किया इस पे और अपने जो है ना सिस्टम लगाए हैं। इसका जो सिस्टम है हमारा 5 ईयर्स पे बैक पीरियड जो है ना नावा डेज़ अवेलेबल है कि आपको 5 साल में आप जितने इसकी पैसे लगाएंगे आप पूरे कर लेंगे। तो इसमें जो बजट है ना नॉर्मली कास्ट दी जाती है रुपीज़ पर वाट। तो एट दैट टाइम हमें कास्ट इसकी आई थी 200 रुपीज़ पर वाट। लेकिन आजकल जो है वो सोलर पैनल्स की क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स भी ख़त्म हो चुके हैं तो आजकल 150 to 160 रुपीज़ पर वाट जो है ना हमें कास्ट पड़ती है। और उसमें ये भी काइंडली नोट कीजिएगा कि ये जो कास्ट है ये पूरे सिस्टम की कास्ट है। इसमें इन्वर्टर, सोलर पैनल्स, आपकी डीसी साइड की केबल्स, एसी की, बाई डायरेक्शनल मीटर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सारे वर्क्स इसमें शामिल हैं। 22 पैनल ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन आप उसको करते हैं कि आपका सिस्टम वोल्टेज ना डिस्टर्ब हो। मतलब आपने 1000 वोल्ट रखा हुआ तो 1000 वोल्ट से कम ही आप वोल्टेज ऐड करें, मतलब 950, 900, 850 तक। तो उसको कंसीडर करके आप जो है ना उसके स्ट्रिंग्स बनाते हैं, मतलब पैनल्स को ऐड करते हैं। एक इन्वर्टर में कितने स्ट्रिंग्स दिए हैं? एक इन्वर्टर में हमने बेसिकली दिए हैं 3 स्ट्रिंग्स। पैरेलल में है या सीरीज में है ये वाला? पैनल हमारे सीरीज़ में है लेकिन जो स्ट्रिंग्स हैं वो आगे इन्वर्टर की इनपुट पे वो हमारी सारी पैरेलल में है। तो जी ये वर्किंग में कितने हैं? मतलब ऑल आर इन वर्किंग कंडीशन। सर ये एमपीपीटी बेस्ड होता है या एमपीपीटी? जी जी। और बैकअप वगैरह बैटरी के थ्रू देना है? नहीं, बेसिकली सोलर का सिस्टम है ना उसकी 3 टाइप्स होती हैं आपकी। एक होता है ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। ये है हमारा सिस्टम ऑन ग्रिड। सबसे इजी और सबसे जो जिसका पे बैक अच्छा है वो ऑन ग्रिड सिस्टम है, क्योंकि इसमें अगर आप बैटरी बैकअप रखेंगे तो आपको पता है कि बैकअप की बैटरी की भी एक लाइफ है 4 to 5 ईयर्स मैक्सिमम। 5 साल बाद फिर दोबारा आप बैटरियाँ चेंज करेंगे और बैटरी की भी अच्छी खासी कीमत है। मतलब आप देखें कि छोटी सी 200 एम्पेयर आवर की बैटरी भी जो है आपको लेड एसिड की वो 30,000 के आसपास आपको मिलती है। तो वो कास्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है। ड्राई बैटरी भी यूज कर सकते हैं? जी जी, वो ड्राइव भी कर सकते हैं हम। नॉर्मली सोलर्स की अलहदा मतलब उसकी ड्राई बैटरी है और उसके साथ एक और तरह की लेड एसिड में भी एक टाइप आती है, मतलब डीप साइकिल बैटरी, उसमें भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वापडा से ले रहे होते हैं। नाइट में यह है कि हमारा क्योंकि हेड ऑफिस है तो डे के 5 बजे तक वर्किंग है, उसके बाद नॉर्मली छुट्टी हो जाती है तो हमारा लोड कनेक्ट कम ही होता है। तो लेकिन अगर नहीं भी है तो फिर आपको नाइट में जो है वो आपको वापडा मतलब आप इस्तेमाल करेंगे। टोटल पैनल कितने लगे हैं? ये 463। हाँ जी 270 वाट के। जी जी, मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125 से तो आप देखेंगे आपको 463 को 270 वाट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है ना 125 किलोवाट आपका निकल आएगा। जी जी, ये बेसिकली कैपेसिटी होती है आपके इन्वर्टर पैनल्स की, कि आपके पैनल्स कितने आपने यूज़ किए हैं उस हिसाब से फिर कैपेसिटी है। लेट्स से कि हमारा अगर 1 मेगावाट का होता तो फिर उसी हिसाब से क्वांटिटी जो है ना उसकी ज़्यादा होती। सर इधर अगर हम 270 वाट की जगह 400 वाट का यूज़ करें वो भी आप कर सकते हैं। आजकल वैसे 400 से भी ज़्यादा ऊपर है, मतलब 600 वाट तक के पैनल अवेलेबल हैं, तो उस वक्त आपकी क्वांटिटी कम लगेगी। लेकिन यह है कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है R&D हो रही है इस पर काफ़ी ज़्यादा, तो आपकी बड़ी कैपेसिटी के पैनल जो है ना वो भी अवेलेबल हैं। इसकी ना आपका रिक्वायरमेंट है तो 150 to 160 रुपीज़ पर वाट आपकी कास्ट है। उस हिसाब से अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप जितना मर्ज़ी आप उसके कर सकते हैं, लेकिन उसके भी आपको ना रिक्वायरमेंट है कि आपका लोड कितना है। मतलब कोई भी आप फैक्ट्री का है, कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, तो जितना लोड होता है उस हिसाब से आपका सिस्टम डिज़ाइन होता है। तो जो पे बैक है नॉर्मली कमर्शियल का वो तकरीबन 5 ईयर्स तक अवेलेबल है, मतलब 4 to 5 ईयर्स पे बैक पीरियड है इसका। मैक्सिमम कितने एमपीटी लगा हुआ है? कितने 1.25 केवी या 3 कितने? नहीं 125 के लिए इसमें हर पैनल जो है ना वो भी MPPT मतलब MPPT होता है, ठीक है। उसके साथ जो हमारा इन्वर्टर है उसमें भी MPPT की मतलब उसमें एमपीटी का कितने मतलब केवी का इन्वर्टर है? हमारा 17 किलोवाट का है। जी जी, 17 के 7 है तो 119 किलोवाट जो है ना हमारा मतलब इन्वर्टर्स लगे हुए हैं। और इसके अलावा सर ये जो पैनल्स लगे होते हैं इनकी जी, जी। efficiency 100 में से कितने % हम ले होते हैं यूज़ कर रहे हैं? इसकी एफिशिएंसी जो है ना बेसिकली इसकी ली जाती है एरिया के हिसाब से। वो हमारी इसकी सिस्टम के 16.5
तो आजकल जो अवेलेबल है वो 20+ है, 22% तक है। और इसके अलावा इसका एंगल भी तो होता है, वो कितना होता है इसका? एंगल नॉर्मली जो है ना 25 टू 50 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडियली जो है हम 30-35 ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। 30 डिग्री जो है ना कंसिडर किया जाता है। सर इन्वर्टर कौन से लगे? इन्वर्टर हमारे यहाँ SMA के हैं। कितने के हैं? ये 17 किलोवाट का एक है और 7 टोटल है क्वांटिटी में, 7। जी जी हाँ, ये सामने कंट्रोल रूम है, इसमें लगे हुए हैं। बाकी बाहर जो हमारी DC साइड है और अंदर जो है हमारी AC है। सर इधर ट्रांसफार्मर लगा है? नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमारा वोल्टेज ना 400 वोल्ट ही हमारी आगे इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हम ग्रिड हो तो फिर हम ट्रांसफार्म करके उसको 11 kV पे ले जाते हैं। वापडा भी कनेक्ट है, जब हमारा लोड ऑफ होता है तो फिर हम वापडा को देते हैं सप्लाई। इसकी 8.5 है, वैसे एग्जैक्ट आपको ना उसकी नंबर प्लेट से मिल जाएगी, लेकिन 8.5 नॉर्मली है। एक जो पैनल है 170 का है, नहीं, 270 वाट। 270 जी जी 270 और टोटल कितनी है? 463। एवरेज जनरेशन कितनी है सर? एवरेज जो हमारी इसकी जनरेशन आती है वो जब स्टार्ट के 3-4 साल हैं उसमें 15,000 पर मंथ जो है ना जनरेशन थी, 15,000 यूनिट्स पर मंथ। जी जी अभी थोड़ी सी सीज़न भी चेंज हो रहा है, जैसे मतलब इस मौसम में अभी हमारी जो एवरेज जनरेशन है वो अप टू 10,000 है, लेकिन जो पीक मंथ्स है ना अपना मई, जून, जुलाई, उसमें हमारी 17,000 18,000 तक जाती है पर मंथ? जी जी यूनिट्स 125 किलोवाट की। किस पर्पज़ के लिए? ये बेसिकली हमारा हेड ऑफिस है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोड हैं, AC हैं ज़्यादातर। उसके अलावा जो है कुछ 1-2 मोटर्स हैं, ठीक है, उसके साथ कंप्रेसर हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारी मेन बिल्डिंग है ना, इसलिए पूरा हमारा हेड ऑफिस जो वन नोबल का है, उसके लिए हमारा 125 किलोवाट का है। यहाँ तो एक ऑफिस हैं, लेकिन अगर वहाँ नोबल ग्रुप आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको ना 2-3 चीज़ें मिलेंगी। उसकी हमारी बेसिक बिजनेस तो हमारा है, केमिकल प्रोडक्शंस है, और इसके साथ एक्सप्लोजिव प्रोडक्शन है, डायनामाइट वगैरह, डेटोनेटर्स। ये हमारे हेड ऑफिस के लिए। जी जी बाकी हमारी केमिकल फैक्ट्री के लिए बल्कि सर से पहले बात हुई थी 1 मेगावाट का, वो कुछ सिक्योरिटी की वजह से नहीं जा सके वहाँ पे, लेकिन यह है कि वो सिस्टम बड़ा, लेकिन है मेन चीज़ यही है उसकी, यह है कि कैपेसिटी ज़्यादा है। तो वो बेसिकली 1 मेगावाट के 2 प्लांट्स हैं, वो हमारी जो केमिकल फैक्ट्री है उसके लिए मतलब अभी कंप्लीट है या? हमने कंप्लीट ऑपरेशनल है। 1 मेगावाट तो 2016 में हमने कमीशन किया था, और जो अभी नया 1 मेगावाट है वो हमने 2021 में। सर वापडा के साथ जब सिंक कर रहे हैं, इसको अप करके 11 kV में कर रहे हैं या 240 में? इसमें हम दोनों ऑप्शन है। जिस तरह हमारा ये छोटा सिस्टम है 125 किलोवाट का, इसमें हमारा जो लोड कनेक्टेड है वो है अपना उस पर 400 वोल्ट्स पे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा सिस्टम वोल्ट आउटपुट है वो 400 वोल्ट है, लेकिन जो हमारा 1 मेगावाट है, जी जी फेस टू फेस जो 1 मेगावाट है वहाँ पे जो हम ग्रिड में सप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे हम करते हैं 11 kV में। तो उसमें क्या करते हैं, इन्वर्टर के बाद जो हमारे सिस्टम आता है ना AC, उसको हम फिर स्टेप अप वोल्टेज करते हैं ट्रांसफार्मर के थ्रू। वो 11 kV हम स्टेप अप करके उसको जो है ग्रिड में हम सप्लाई करते हैं। सर इन नियर फ्यूचर अगर कोई है कि आपने इसे बढ़ाना है, 125 से लेके किधर तक आगे? इसमें बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन यह है कि आपका ना डिपेंड करता है आपके लोड पे। मतलब आपकी कंपनी ने अभी तक कोई नहीं सोचा इस बारे में कि? अभी हमारा लोड तकरीबन फिक्स है, ठीक है। तो हमारा जो सिस्टम है वो अपनी मतलब कैपेबिलिटी है इसकी कि वो पूरा कर रहा है। तो जैसे इसके मतलब 15 ईयर्स कंप्लीट होंगे, दैट मीन्स उस वक्त हम फिर सोचेंगे इसको। इनिशियली 2014 में लगा था, जी जी उस टाइम से इसी कंडीशन में ऑपरेशन। जी जी इसमें ना डिग्रेडेशन होती है जनरेशन में, ठीक है। तो जो सोलर पैनल होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग वारंटी 5 साल होती है, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस वारंटी है वो 25 ईयर्स ली जाती है सोलर पैनल्स की, सोलर सिस्टम की भी, ठीक है। और इसमें 25 ईयर्स में ये होता है कि ये 10% तक डिग्रेड करेगा फर्स्ट 10 ईयर्स तक, और अप टू 25 ईयर्स डिग्रेडेशन विल बी अप टू 80%। दैट मीन्स कि इसकी एफिशिएंसी जो जनरेशन है ना वो 80% तक रहेगी 25 साल तक। तो जो उसकी यूज़फुल लाइफ है वो भी 25 ईयर्स तक ली जाती है। तो जिस हिसाब से आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उसमें यह है कि आपके इतने ही एरिया में कम पैनल लगे और कम जगह मतलब आपकी ऑक्यूपाई करके आपकी जनरेशन कर देते हैं। मतलब जिस तरह अभी 270 वाट है ना, अभी 450 वाट्स भी आ रहे हैं, और 540 550 बल्कि 610 वाट्स। 60 पे सर अभी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं सर।
610 तक तो अवेलेबल हैं वैसे आजकल। 540 मैंने देखे हैं अभी तक। 540 चले 535 का मैंने अपने घर में भी लगाए हुए हैं, तकरीबन 2 साल पहले लगाए थे। तो अभी जो है ना 600 तक अवेलेबल है, उससे आगे भी मज़ीद 28% तक एफिशिएंसी जाएगी वैसे। तो यह है कि उसमें यह है कि आपकी कम जगह पे ज़्यादा पावर जनरेशन होगी, और जो सोलर की एफिशिएंसी दी जाती है वो भी बेसिकली उसके एरिया के हिसाब से कि इतने एरिया में उसने इतनी जनरेशन करनी है, तो ये 16% उसकी एफिशिएंसी या 20% ये उसके एरिया के हिसाब से एफिशिएंसी ली जाती है। क्योंकि एक्चुअल में होता यह है कि 1 स्क्वायर मीटर एरिया आपका पैनल का हो, उसको 1000 वाट जनरेट करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा जो पैनल है ये 270 वाट जनरेट करता है, और एरिया भी ऑक्यूपाई करता है कितना 1.6 स्क्वायर मीटर इसका पूरा एरिया है। तो इस वाले से उसकी एफिशिएंसी जो है ना फिर कम है। जो आजकल लेटेस्ट अवेलेबल हैं उनकी एफिशिएंसी 21, 22 इस तरह अवेलेबल है। यहाँ पे एक प्लेट में कितने सेल्स हैं जो सेल्स होते हैं? इसमें 60 सेल्स हैं 60 सेल्स। जी। नॉर्मली 72 सेल्स वाली भी जो बड़ी है ना 660 वो 72 सेल्स में अवेलेबल है। इसमें 60 है, 48 वाली छोटी आती है, उसमें मतलब 170 200 वोल्ट, वो पुरानी मतलब मॉडल्स हो चुके हैं अब, मतलब आप कम इस्तेमाल होते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, रेजिडेंशियल पे तो इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे कम इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मली जो है वो 72 मोनो सेल्स यूज करेंगे पॉली मोनो है, मोनो जी। और सर प्रोटेक्शन के लिए क्या स्कीम बनाई? इसका जो पैनल की प्रोटेक्शन है ये इसके अंदर जो है ना बेसिकली डीसी प्रोटेक्शन होती है। इसके लिए ना स्पेसिफिकली जो है डायोड लगे होते हैं, रिवर्स पोलैरिटी डायोड, कि इन केस अगर प्लस माइनस आपका एक्सीडेंटली आपने उसको शॉर्ट कर दिया है, तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए रिवर्स पोलैरिटी डायोड जो है ना वो उसकी सेफ्टी ऑपरेट होगी, और आपका पैनल जो है डैमेज होने से बच जाएगा। अदरवाइज़ जो है डीसी आपको पता है कि डीसी इज़ मोर डेंजरस दैन एसी, एंड इसकी जो सेफ्टी भी ज़्यादा चाहिए होती है। आगे कोई ब्रेकर वगैरह? बाकी उनकी एसी साइड पे प्रोटेक्शन कंप्लीट है, मतलब आपको ब्रेकर से सप्लाई करते हैं। इन्वर्टर्स के अपने अंदर बिल्ट इन प्रोटेक्शन होती है, जो ओवर करंट, ओवर वोल्टेज और इसके अलावा इंसुलेशन फेलियर ऑफ केबल्स उसको मॉनिटर कर रही होती है ऑनलाइन। तो जैसे कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है तो वो उसका मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम है, ट्रिपिंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए कोई आपको स्पेसिफिकली कोई मैकेनिकली कोई पर्सन नहीं चाहिए कि वो उसको ऑफ़ करे या ऑन करे, इसमें ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन है इन्वर्टर्स में। ये वाले मोनो के स्ट्राइन जी सर, जी। जो उधर 1 मेगावाट वाला प्रोजेक्ट लगा उसमें उसमें नहीं उसमें मोनो पार्क है, ठीक है जी जी। और इसमें डिफरेंस क्या उसमें ना एफिशिएंसी का डिफरेंस है, मतलब आजकल जो लेटेस्ट अवेलेबल है वो मोनो पार्क में आ रहे हैं, जिसकी एफिशिएंसी जो है ना सेल्स की ज़्यादा है, ओनली एफिशिएंसी का जो है ना वो है। सर, और इनकी अगर एक सेल डैमेज हो जाए और इसका एक साल डैमेज हो जाए तो आपकी ना पूरी पैनल आउटपुट कम देगा, क्योंकि सारे पैनल जो है ना वो सीरीज़ पैरेलल में कनेक्ट हैं, सेल्स भी बीच में। एक सेल्स अगर सीरीज में आपको पता है कि एक सेल्स में ब्रेकेज आएगी तो वो बाकी जनरेशन आपकी उसकी डिस्टर्ब करेगी। सर ये मोनो पार्क वाले में क्या इशू होता है सर, अगर उसमें सेल डैमेज हो जाए तो? उसमें ना जो उसकी सीरीज़ पैनल में उसमें कुछ ये है कि कुछ मतलब 60 पैनल एक सीरीज़ में है ना, उसमें यह है कि कुछ पैनल जो है वो सीरीज़ में है, कुछ सेल्स पैरेलल में है, उसमें से अगर डैमेज होगा तो उसमें, लेकिन उसमें भी जनरेशन में फ़र्क पड़ता है। वो एक साइड आपकी जो जितने सेल्स सीरीज़ में है ना वो सारे एक वो सीरीज़ आपकी मतलब उसमें जनरेट करता रहता है उस मतलब इसमें भी जनरेट तो इसमें भी करता है, मतलब एक सेल आपका डैमेज हो जनरेट उसमें भी, क्योंकि इसमें भी सारे सेल सीरीज़ में नहीं है, कुछ सीरीज़ में कुछ सीरीज़ लाइन मतलब जो एक जिस सीरीज़ का डैमेज हुआ वो सीरीज़ आपकी ऑफ हो जाएगी, तो बाकी आपका लोड उस पर ज़्यादा होगा और आपका ना पैनल पे हॉट स्पॉट वगैरह बनने के चांसेस हैं। तो उस पर लोड नहीं पड़ता दूसरे पे? उस पर पड़ता है लेकिन मतलब कम पड़ता है उसमें, हाँ कम पड़ता है। सर ये 4 पैनल अलग करके लगाए हुए हैं, ये क्या है सर स्टार्टिंग में? ये बेसिकली इसका ना डिज़ाइन का था कि जो स्पेस अवेलेबल होती है ना उस हिसाब से इसका डिज़ाइन किया जाता है। तो वैसे वो अलग नहीं है, वो थोड़ा सा उसको स्पेस दिया, वो मैंने एक सेंसर लगाना था बीच में, उसके लिए उसको किया, वैसे उसका कोई इशू नहीं है। सर इसके मेंटेनेंस प्रोसीजर्स और क्या होता है और कॉस्ट वगैरह मेंटेनेंस? इसके ना मेंटेनेंस कास्ट आपकी ना नॉर्मली जो आपके बड़े सिस्टम के लिए लें तो तकरीबन 4 से 5 रुपये जो है ना वो आपकी पड़ती है इसकी पर यूनिट के हिसाब से। तो इसकी जो मेंटेनेंस है उसके लिए आपको लेबर रखने पड़ते हैं कि आपको ना पैनल वाशिंग जो है ना वो एक एक्टिविटी है वो आपको करनी पड़ती है, ये इसकी मेंटेनेंस है। सर पैनल वाशिंग किससे होती है? आप नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं वाइपर, लेकिन वाइपर आपका इस तरह का हो कि वो स्क्रैचेस ना डाले उसके ऊपर, फोम टाइप हो जाए, या आप उसके ऊपर कोई तौलिया वगैरह इस्तेमाल कर लें तो स्क्रैचेस से बचाना इसके मतलब इसकी यार एफिशिएंसी जो है ना, एक तो इसकी डिज़ाइन एफिशिएंसी है,
मतलब 16.5 जो इसकी पूरे पैनल्स की एफिशिएंसी है। तो इसकी अगर हम इसको मेंटेन रख सकते हैं, इंक्रीज़ नहीं कर सकते। मेंटेन ये है कि इसकी प्रॉपर वॉशिंग आप करें, ठीक है, इस पर शेडो कम से कम आए। तो ये 2-3 तरीके हैं कि इसको मतलब क्लीनिंग प्लस आपका शेडो ये ना हो। हम मंथ में 2 दफ़ा, ट्वाइस अ मंथ। सर ये किस टाइम से किस टाइम तक फुल पावर देता है? ये इसके ना लिए जाते हैं सन आवर्स। एवरेज जो सन आवर्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के इस रीजन में वो 4 to 5 आवर्स हैं पर डे एवरेज। तो इसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है वो हमारी आती है सुबह 10 से लेके 2 बजे तक सर्दियों में, और गर्मियों में क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो आप 9 से ले लें और आप 9 से 3 बजे तक। लेकिन एवरेज जो है वो 4.2 4.5 5 आवर्स जो है ना इस रीजन में हमारी इसके आवर्स हैं। सर मोनोक्रिस्टलाइन जो है प्लेट्स, जी जी, उसको क्लीनिंग, वाटर क्लीनिंग, जी जी। हाँ उसमें डस्ट जो है ना, देखें जगह आपकी ब्लॉक होगी, आपकी सन जो रेडिएशन है सन की वो उसके ऊपर नहीं पड़ेगी, तो उससे आपकी जनरेशन काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी एक थिक लेयर बन जाए, हाँ वो थिन लेयर अगर डस्ट की जम जाए ना, मतलब आप काफ़ी अरसे तक ना करें तो उसकी जनरेशन में फ़र्क पड़ता है। तो इसके लिए हम जो है ना ट्वाइस अ मंथ जो है ना इसकी क्लीनिंग करते हैं। सर ये मोनोक्रिस्टलाइन जो प्लेट्स होती हैं इनके कलर्स में डिफरेंस होता है, कुछ लाइट ब्लू होती हैं, कुछ डार्क ब्लू में होती हैं, तो इनमें भी कोई चेंजेस होते हैं? ये बेसिकली इसका ना नॉर्मली तो ब्लैक अवेलेबल है और ब्लू इस कलर में है, तो उसका इशू नहीं है। वो आपकी एफिशिएंसी पर डिपेंड करता है कि आपको जो मैन्युफैक्चरर वो क्या एफिशिएंसी देता है। सर इनका एंगल क्या है? 30। सर मैक्सिमम किस पे दे रही है? 22 की है कि हमारा सिस्टम वोल्टेज जो है ना वो हम 1000 वोल्ट है हमारे इसमें, तो हमारे जो सिस्टम वोल्टेज है वो 1000 से एक्सीड ना करे, इसलिए हमने 22 पैनल्स को जो है ना सीरीज़ में लगाया। वो भी आपकी डिपेंड करता है आपके इन्वर्टर्स की इनपुट पे कि उसकी कितनी हम स्ट्रिंग्स उसके इनपुट पे दे सकते हैं। उस हिसाब से हम ना एक इक्वल लेवल पे स्ट्रिंग्स बना के उनको फीड करते हैं ताकि जनरेशन में कोई फ़र्क ना आए। जो 1 मेगावाट वाला उसकी कितनी स्ट्रिंग में कितना है? उसमें भी है, उसमें 20 पैनल की स्ट्रिंग है एक। तो कम है। हाँ जी जी जी। सर ये पिछले दिनों में ओले 463। पिछले दिनों में ओले पड़े हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टूटा हो जाए? इसके ना वैसे जो ग्लास होता है ना वो स्पेशली प्रोटेक्शन टाइप होता है कि इसमें ना आपके ओले या कोई शार्प ऑब्जेक्ट हिट करे उसको सेव कर लें, लेकिन अगर आपकी बुलेट वगैरह हिट करती है फिर डैमेज होते हैं। लास्ट टाइम जो हुआ तो अच्छा उससे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे कभी हुआ तो नहीं टूटा? नहीं, उसकी ना एक जो मैन्युफैक्चरर है ना वो एक तरह की वारंटी देता है कि इस स्पीड से और इस डाई के अगर ओले आपके पड़ेंगे इस पर तो वो उसको डैमेज नहीं करेगी। तो वो बड़ी हैवी किस्म के, अल्लाह ना करे कोई इस तरह का हो तो फिर हो सकता है, अदरवाइज कोई। हाँ आए थे लेकिन इससे डैमेज नहीं हुआ, कोई हमारा पैनल नहीं डैमेज हुआ। सर्दियों और गर्मियों में इसकी जो इंक्लिनेशन है वो सेम ही रखते हैं या चेंज करते हैं? नहीं, इसमें ना ये एक कंसेप्ट है ट्रैकिंग का कि आप अगर इसकी ट्रैकिंग करें ना मैकेनिकली कि आप पैनल की मूवमेंट जैसे जैसे अपनी सूरज की डायरेक्शन चेंज होती है इसकी भी डायरेक्शन चेंज हो, तो वो सिस्टम अवेलेबल है, लेकिन यह है कि वो कास्टली होता है, कास्टली भी है, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस भी है, मैकेनिकल सिस्टम है, डेफिनेटली उसमें मेंटेनेंस है उसकी, तो वो फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे थोड़ा सा कम करते हैं उसको। कहते हैं ना मैनुअली मूवमेंट सिस्टम भी होता है। जी जी, जैसे सूरज की कंडीशन चेंज हुई होती है, हाँ एक बंदा फिर हमें उधर हाँ स्पेसिफिकली फिर वो आपको रिक्वायरमेंट होगी, आपको कोई जो मूव करेगा वो बंदा फिर अवेलेबल होगा। होते हैं ना डेरों वगैरह पर जी जी, मोटर्स लगाई हुई हाँ पानी के लिए, वो छोटे सिस्टम के लिए आप कर सकते हैं, मतलब आपके 4-5 पैनल है या 10 पैनल है ना, उसको मूव करना आसान है, बंदा को खूब ड्यूटी कर सकता है, लेकिन इतने लार्ज लेवल पे इस तरह मूव करना जो है ना वो फिर एक आप कास्ट पड़ती है उससे। सर आपने 150-160 पर यूनिट बताई, जी जी, ये 5 इयर्स में आपने कहा कि ये 5 ईयर्स बैकअप है। उसके बाद सर जो है पर यूनिट प्राइस क्या रह जाती है? उसके बाद आपकी मतलब आप देखें कि 5 साल में ना आपके पैसे जितने आपने लेट से के इन्वेस्टमेंट किए ना वो आपके पूरे हो जाएंगे। उसके बाद जितनी सोलर जनरेशन होगी वो आपको फ़ायदा होगा, मतलब आपके इसकी मेंटेनेंस वगैरह ये सारे कुछ तो ये निकाल के मैं कह रहा हूँ कि 5 साल आपका सारा कुछ शामिल है जी, बीच में आपकी ऑपरेशन मेंटेनेंस यहाँ भी हाँ जी, ये फ्री में मतलब आपको देगा। अभी ये प्रॉफिट में है? अभी ये प्रॉफिट में, जी जी बिल्कुल। सर ये क्वेश्चन है ओपन सर्किट वोल्टेज और हाँ, जो रेटेड वोल्टेज है इन दोनों में क्या फ़र्क है? बेसिकली ओपन सर्किट वोल्टेज आपका होता है आइडियल, ठीक है, कि आपका मतलब ये आपका उस वक्त जब आपका लोड कनेक्ट नहीं है उस टाइम ये ओपन सर्किट वोल्टेज आपका मैक्सिमम पे होता है, ठीक है। जो रेटेड होता है वो ये होता है कि जब आपका सारी चीज़ें आपकी स्ट्रिंग्स ऐड हैं, आपका करंट भी फ्लो हो रहा है, उसको फिर हम कहते हैं कि रेटेड वोल्टेज है, कि जो ऑपरेशनल वोल्टेज आपका वो रेटेड में आता है।
मतलब अगर मेरे पास सूरज की रोशनी कम भी है तो वो रेटेड 30 वोल्ट ही देगा। वोल्टेज आपका कांस्टेंट होगा, जो इसकी वेरिएशन है ना करंट आपकी हमेशा आप याद रखें कि करंट जो है ना आपका वेरी करेगा। वोल्टेज आपका बल्कि आप देखेंगे कि जब आपका सूरज नहीं है तो वोल्टेज क्या पता ज़्यादा हो इसके, उसका ज़्यादा भी होंगे। जब ऑपरेशनल में होता है फिर आपके वोल्टेज कम होते हैं थोड़े से, आपका करंट भी साथ साथ क्या होता है। वजह है कि जब सूरज नहीं होगा तो वोल्टेज ज़्यादा हो जाएंगे? देखिए मेन चीज़ आपकी है करंट की, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सारा बेस ही करंट पे कर रहा है, ठीक है। वोल्टेज आपके पास बेशक जितना मर्जी अवेलेबल है, लेकिन जब तक करंट फ्लो नहीं हो रहा आपका उसका फ़ायदा नहीं है। जी जी। तो अब हमेशा पावर का भी एक कंसेप्ट होता है कि आपका जब अब लोड कनेक्ट हो जाता है ना आपके सिस्टम के साथ, आप देखेंगे वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, जैसे जैसे करंट बढ़ता है ना आपका वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें भी सेम यही होता है कि आपके करंट बढ़ता है तो वोल्टेज थोड़े से, मतलब इतना नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन एक थोड़े से कम हो जाते हैं स्टैंडर्ड से। थोड़ी बहुत जनरेशन हो रही थी, ये कुछ भी नहीं हो रही? नहीं कुछ नहीं, नहीं कुछ भी नहीं हो रही। रात को मतलब आपका देखें कि सन की तरह की लाइट अवेलेबल नहीं है। सर अगर हम वैसे ही से हीटिंग सोर्स दे दें जब जनरेशन, नहीं ये आप ये कंफ्यूज करें, इसका हीटिंग से नहीं है। जितनी इसकी हीट कम होगी उसकी इतनी जनरेशन ज़्यादा होगी। हीट की डिग्रेडेशन, आप पैनल की आप स्पेक्स देखें ना, उसमें उन्होंने कुछ वैल्यूज़ दी होती हैं कि इतना हीटिंग डिग्रेडेशन है। अगर आपका टेम्परेचर इतने टेम्परेचर से अबव जाएगा 25 से अबव, तो इतने पॉइंट जो है ना पर डिग्री के हिसाब से आपका उसमें डिग्रेडेशन या पावर जनरेशन कम होगी। वोल्टेज ना कीजिएगा, पावर, हमें आउटपुट पावर चाहिए, वोल्टेज का हमसे कोई उस तरह नहीं है। लेकिन जो हम जो चीज़ पढ़ रहे होते हैं कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिलेगी हीट के फॉर्म में तो वो तब करंट फ्लो होगा, तो उसकी वजह से ये आपका ये आपके आते हैं सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में। इंट्रिंसिक में ये होता है कि आप बढ़ाएंगे ना क्या अपनी हीट बढ़ाएंगे, उससे इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। लेकिन जब आपका सेमीकंडक्टर एक एक्सट्रिंसिक हो जाता है जिसमें इम्प्योरिटी डाल के पीएन मतलब आपका पूरा जंक्शन बन जाता है, उसमें जब आप देखेंगे आपकी जब हीट ज़्यादा करेंगे उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन होल मूवमेंट जो है ना उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी जब आप टेम्परेचर ज़्यादा देंगे। तो उस तरह का हीटिंग सोर्स नहीं इस तरह इस पर सोलर पैनल पे नहीं हो सकता, लेकिन यह है कि वो फिर एक लहदा सेपरेट एक चीज़ है। इसकी बैटरीज का थोड़ा बता दें, बैटरी लाइफ भी तो होती है। बैटरी जो है ना नॉर्मली रेजिडेंशियल लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं या कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए, तो इसकी जो लाइफ है वो नॉर्मली बहुत अच्छी बैटरी हो तो 5 साल निकाल जाए, बड़ी बात है। वैसे यहाँ पे फिर उसके लिए क्या इसके लिए नेट मीटरिंग है, हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम है ना, तो इसके लिए हम नेट मीटरिंग कर रहे हैं। हमारा बैटरी कोई बैकअप नहीं है। जैसे हमारी अगर लेट से कि वापडा बंद होगी तो ये सिस्टम भी बंद हो जाएगा, जनरेशन ज़ीरो, क्योंकि इसकी ना एंटी लाइटिंग प्रोटेक्शन होती है कि हमारी ये ना हो कि जनरेशन जो है वो वापस ग्रिड में जाएगी। अगर लेट से वहाँ पे कोई रिपेयर मेंटेनेंस कर रहा है, कोई लाइनमैन जो है वो मतलब काम कर रहा है वहाँ पे, तो करंट उसको मिल जाएगा तो वो फिर सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। तो उसके लिए एंटी लाइटिंग प्रोटेक्शन है कि सिस्टम बंद होगा तो हमारी जनरेशन भी बंद हो जाएगी। और अगर इसका एक दूसरी किस्म है हाइब्रिड में यह है कि हमारा दूसरा सोर्स हो सकता है कि लेट से कि हमारा लोड एक कनेक्ट है, उसके जो सिस्टम है जनरेटर इस्तेमाल कर लें बैकअप के तौर पे और हमारा सोलर सिस्टम जनरेट कर रहा हो, फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मोस्ट अफोर्डेबल और मोस्ट अच्छा सिस्टम जो है ना वो ऑन ग्रिड है, ठीक है। लेकिन ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड उस केस में इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आप देखेंगे कोई पावर सोर्स है ही नहीं है, मतलब आप डेजर्ट में जा रहे हैं वहाँ पे आपका पावर सोर्स है ही नहीं है, तो उसके लिए हम ऑफ ग्रिड बैकअप के साथ या आप हाइब्रिड इस्तेमाल कर सकते हैं, डीजल जनरेटर साथ सोलर। सर अगर लोड शेडिंग हो रही है तो सर तब देगा नहीं, ऑफ तब भी नहीं देगा, वापडा बंद, ये भी ऑफ। ये फिर क्या, ये फिर मदद तो नहीं नहीं कर सकते। फायदा नजर नहीं ताकि जब वहाँ पे वापस आपको इसमें जो सबसे बड़ी इशू है ना, ये देखिए कि सोलर जनरेशन में ये होता है कि आपकी अभी जनरेशन हो रही है लेट से 100 किलोवाट, आपका लोड है 200, स्ट्रिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर लेट से कभी क्लाउडी वेदर हो जाए ना तो इसकी जनरेशन 100 किलोवाट से कम होकर मे बी 20-30 किलोवाट पे आ जाए, उस वक्त ट्रिपिंग हो सकती है। तो सोलर पे डायरेक्ट आप इस तरह लोड नहीं डालते, उसके लिए आपको एक सेपरेट सोर्स देना पड़ता है, वो या बैटरी हो या ग्रिड हो या आपका जनरेटर हो। ये 3 सोर्स उसके डिपेंडेबल सोर्स जो है ना वो देने मतलब आपको ज़रूरी है। यहाँ पे आप जो आपने कितनी मैक्सिमम में चेक किया है यहाँ पे 125 किलोवाट? मैक्सिमम जो हमारे यूनिट्स जनरेशन है वो 740 यूनिट्स जनरेट हुए हैं आइडियली, मतलब 7 साल में जब हमने उसका ग्राफ बनाते हैं ना। मैक्सिमम पावर एक दिन में कितनी, मतलब जो मैक्सिमम ना इसकी मैक्सिमम ना 2-3 चीज़ होती है, आइडियल कंडीशंस होती हैं इसमें ना 25 डिग्री टेम्परेचर आपका हो, रेडियंस आपका मैक्सिमम और ख़ास करके और आपका एंगल जो है ना वो भी मतलब एग्जैक्ट टू द उसके हो, तो उसमें हमारी जनरेशन जो है वो 120 किलोवाट तक भी आई है। तो पर वो आइडियल कंडीशन मीट करना बड़ी मुश्किल होता है और वो भी इंस्टेंटेनियस आती है, मतलब 2-4 मिनट को वो ये उस दिन अचीव हुई थी जिस दिन जब ये बारिशें होती है ना, ये इस दिन मौसम भी ठंडा होता है और बिल्कुल
क्लियर धूप आपकी पैनल पे पड़ती है तो उससे जनरेशन काफ़ी अच्छी होती है। जी प्लीज़। धूप की इंटेंसिटी का पे फ़र्क नहीं है? नहीं फ़र्क इंटेंसिटी कह रहे हैं हीटिंग का फ़र्क है। हीटिंग इसके लिए जो है ना नुकसानदेह, लेकिन इंटेंसिटी अच्छी इसके लिए फ़ायदेमंद है। जिस तरह की अभी धूप है ना, इसमें टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है लेकिन धूप अच्छी है, तो ये जनरेशन के लिए ज़्यादा अच्छा है। क्यों तला सर ये जो आपने बताया था 1 मेगावाट वाला, सर वो रात को भी ऑपरेशनल रहता है? नहीं सोलर आप जब तक सन अवेलेबल है आपकी जनरेशन है। प्रोडक्शन केमिकल की रात को भी जारी होती है सिर्फ दिन के टाइम? नहीं हमारी फैक्ट्री 24 घंटे चलती है, लेकिन हमारा जो जनरेशन है ना, देखें जनरेशन हमारी जो हो रही है उस हिसाब से सम टाइम ऐसे भी होता है लोड कम होता है जनरेशन ज़्यादा है, तो उसके लिए बाई डायरेक्शनल मीटर हमारा इसी काम के लिए है कि हम जितनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना उसके हिसाब से हमें फिर बिलिंग होती है। फिर रात को तो उनको सारी वापडा से लेनी पड़ती है? वो फिर हम सिस्टम इस तरह का डिज़ाइन कर, हमारा जो लोड है ना 1.5 मेगावाट का है केमिकल फैक्ट्री में, तो हमने 2 मेगावाट का सिस्टम इसलिए लगाया कि दिन में हम जनरेशन ज़्यादा करेंगे, नाइट में जो हमारा इस्तेमाल है वो बेशक होता रहे, ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ मंथ जो हमारी जनरेशन और कंजम्पशन तकरीबन मैच हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली इन्वर्टर है, ठीक है। ये इन्वर्टर का क्या काम है, DC टू AC कन्वर्जन, ठीक है। इसके लिए ये हमारी जो फील्ड से केबल्स आ रही हैं, ये DC केबल्स आ रही हैं प्लस माइनस, ठीक है, जिसमें 22 पैनल जो है वो स्ट्रिंग्स एक स्ट्रिंग में अटैच हैं सीरीज़ में, ठीक है, और ये 3 स्ट्रिंग्स जो इटसेल्फ है ये पैरेलल में कनेक्ट है इन्वर्टर के साथ, ठीक है। तो इसका जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि जो हमारा DC पावर आ रही है उसको AC में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसके लिए ये केबल है कम्युनिकेशन के लिए। पर इन्वर्टर 3 स्ट्रिंग तो आ रही है? जी और 17 किलोवाट जो है ना इसकी कैपेसिटी है इंडिविजुअल की। एक की? हाँ नहीं इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ, हाँ एक इन्वर्टर की। तो बाकी इसका ये है कि आप देख रहे होंगे इसकी पावर आ रही है अभी जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो तकरीबन 8.62, ये डिपेंड चेंज होती रहती है, मतलब ये इंस्टेंटेनियस है, मतलब जैसे जैसे अभी सूरज ढलेगा तो इसकी जनरेशन भी वैसे वैसे कम होती जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ जो यूनिट्स की जनरेशन है उसने आज जो है ना पूरे दिन में 50 यूनिट्स पर अभी जनरेट किया है इस एक इन्वर्टर ने। बाकी जो इसने जब से सिस्टम इंस्टॉल हुआ 175 मेगावाट आवर यूनिट जो है ना जनरेट कर चुका है। तो ये बेसिकली इसका इन्वर्टर का मेन पर्पज़ है। इसके साथ ये कम्युनिकेशन केबल लगी हुई हैं जो इसकी जो जनरेशन है, जो इसका डाटा है, मतलब करंट वोल्टेज वगैरह वो सारी हम मॉनिटर कर सकते हैं ऑनलाइन भी, और रिमोट के लिए हमने अपने PC कनेक्ट किया उससे भी हम इसकी देख सकते हैं। बाकी इसके आउटपुट जो है ये बेसिकली 3 फेज़ 4 वायर केबल है, 230 वोल्ट्स जो है वो लाइन टू ग्राउंड है, और फेज़ टू फेज़ जो है वो 400 वोल्ट्स हैं। जी तो ये फिर हमारी जो है ना ये ग्रिड में सप्लाई होते हैं कनेक्ट होके, मतलब ये सब की आउटपुट जो है ना ये पैरेलल में कनेक्ट होगी और फिर एक मेन ब्रेकर या मेन केबल से जो है वो हमारी जहाँ पे लोड है वहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाएगी। जी अंडरग्राउंड भी कर सकते हैं, ओवरहेड भी, लेकिन वो हमारी केबल कुछ अंडरग्राउंड है बाकी ओवरहेड है, ठीक है। तो ये केबल जो इसकी आउटपुट है ये हमारी जो जहाँ पे लोड कनेक्ट है, ठीक है, उसकी जो है वो इनकमिंग पे सोलर प्लस वापडा ये कनेक्ट होते हैं। इन केस हमारी जनरेशन कम है तो हम वापडा से सोलर यूनिट्स ले रहे होते हैं, सोलर नहीं बल्कि जो एनर्जी यूनिट्स हैं। और अगर हमारा लोड ऑफ है हमारी जनरेशन तो फिर भी हो रही है, तो फिर जो हम यूनिट्स एक्सपोर्ट करते हैं ग्रिड में, और इसको जो प्लस माइनस करके हम बाई डायरेक्शन मीटर हमने इंस्टॉल किया हुआ है, इससे जो है वो हम प्लस माइनस करके इसकी पर मंथ की कंजम्पशन हमारी जो है ना बिलिंग हमें वो फिर उस हिसाब से हो जाती है। मतलब यूनिट्स हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किए हैं, इंपोर्ट कम किए हैं, तो फिर हमारे यूनिट्स क्रेडिट पे रहते हैं उनकी यूटिलिटी पे, और अगर हमारे यूनिट्स ज़्यादा हमने कंज्यूम किए हैं और हमारी जनरेशन कम है तो वो फिर हम उनको उतने यूनिट्स का बिल पे करते हैं। आपके ज़्यादा वो नहीं देते? अब उसमें है वैसे, मतलब आप उनके साथ अगर आप नेट मीटरिंग का करें तो वो आपको पैसे भी क्रेडिट करते हैं। अगली दफ़ा एडजस्ट हाँ तो लेकिन यह कि हम अगली दफ़ा एडजस्ट करवा लेते हैं क्योंकि हमारा ओवर कैपेसिटी सिस्टम नहीं, हमारा अप टू द लोड ही है, तो हमारी वो फिर उस हिसाब से। ये ब्लूटूथ का साइन नज़र आ रहा है, किस वक्त? ये कम्युनिकेशन है इसकी, मतलब इसकी ब्लूटूथ डिवाइस लगा के ना इसकी हम कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। इसके पैरामीटर को चेंज करना है उसके लिए ये ना 3 कम्युनिकेशन के पैरामीटर्स हैं। ये इसका फॉल्ट का इनकेस कोई ओपन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आता है तो ये फिर खुद ट्रिप हो जाता है।
इसमें ना कुछ होता है, हर पैनल की कंडीशन चेंज होती है। मे भी किसी पे शेडो आ रहा हो थोड़ा बहुत, ठीक है, या किसी की यह कि कोई उस पर कोई डस्ट वगैरह का वो भी चेंज होता रहता है ना, एक ही तरह के नहीं है उस तरह। कितने पैनल एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है? 22 पैनल्स जो है ना एक सीरीज़ में है, एक स्ट्रिंग जो है ना हमारी 22 पैनल्स की है। सर क्वेश्चन ये है कि कितने मेगावाट तक सर हम नेट मीटरिंग करके सर उन्हें दे सकते हैं? जो नेपरा आपको रिकमेंड करता है ना, नेपरा में ना दो चीज़ें आपकी, एक तो आप नेट मीटरिंग करते हैं, एक आपका है कि आप एज आ IPP आप सिस्टम लगाएं मेगावाट्स में और आप ग्रिड में सेल करें। दोनों में जो है नेट मीटरिंग अप टू 1 मेगावाट जो है ना नेपरा अलाउ करता है। मतलब आपका घर है या कमर्शियल बिल्डिंग है, आपकी छोटा सेटअप है, उसमें आप अप टू 1 मेगावाट नेट मीटरिंग कर सकते हैं। नेट मीटरिंग में क्या होता है कि आपका लोड भी कनेक्ट है और आपकी जनरेशन भी हो रही है, तो उस हिसाब से फिर आपका यूनिट्स आपको मतलब आपको वो क्रेडिट करता है वापडा। और अगर IPP हैं, जिस तरह आपको जनरेटर आपने लगा लिया या तो इसी तरह सोलर प्लांट आपने लगाया, तो एक टैरिफ डिफाइन करते हैं अपना कंसर्न जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्लस नेपरा प्लस आपका जो है वो एनर्जी परचेज जो एक इदारा है उनका अपना एजेंसी है गवर्नमेंट की, वो आपका टैरिफ डिसाइड करती है। उस हिसाब से फिर आप वापडा को सेल आउट करते हैं या आप फिर उतने जो यूनिट आपको टैरिफ मिलता है ना उस हिसाब से आपकी बिलिंग होती है। लेट से कि मैंने 1,00,000 यूनिट जनरेट किया है, उन्होंने 10 रुपये यूनिट पर मुझे देंगे, तो लाख को 10 से 10 लाख का मुझे जो है ना पर मंथ मिल जाएगा जितने मैं यूनिट प्रोड्यूस करूँगा। इंस्पेक्शन के लिए वापडा आते हैं, वापडा वाले आते हैं? ये हमारा इंटरनल नेटवर्क है जहाँ पे ना आप पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ का आपने नाम सुना होगा PF में, ठीक है, मोस्टली में भी आप स्टूडेंट्स कुछ रहते भी हो बाकायदे में, तो वहाँ पे यह है कि PF के जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो हमारी एज अ PF है, PF से हम बिजली ले रहे हैं। तो PF से लेने का हमें ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उनकी ना एक कंसिस्टेंट है, मतलब उसकी लोड शेडिंग नहीं है। तो हमारा तो PF के साथ है, लेकिन हमारा यहाँ पे लोड कनेक्ट है, तो हमें बस ये है कि हम अगर यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल कर लें ग्रिड से तो हमें बिल आता है। अगर हमने उनको एक्सपोर्ट ज़्यादा करें तो हमारे वो क्रेडिट में जमा होते रहते हैं, और जब नेक्स्ट हमारे कंजम्पशन ज़्यादा होती है तो फिर ये एडजस्ट हो जाती हैं उसमें। सर ये कौन सी जनरेशन, कौन से तरीके से जनरेशन कर रहे हैं PF में? सर थर्मल कर रहे हैं? PF में ना उनके 2-3 तरह के सिस्टम हैं। उनकी एक जो है ना वो स्टीम टर्बाइंस लगी हुई हैं, ठीक है, उससे जनरेशन करते हैं। और एक पावर ले रही है स्टीम टर्बाइन? वो बेसिकली बॉयलर लगे हैं, स्टीम पता नहीं गैस से जनरेट करते हैं या कोई उनका अपना सेटअप है, गैस जो है ना मेन गैस से जनरेट करते हैं। जी जी सर नेट मीटरिंग में जो यूनिट्स हैं, जी जी सर जो आप अगर उनको प्रोवाइड करें तो उसी रेट पे प्रोवाइड करेंगे आपके अपने जिस प्राइस पे आपको यूनिट मिल रहा है? उसमें ना जिस तरह हमारा जिसमें अगर तो नेट मीटिंग ना उसमें तो यूनिट एडजस्ट होंगे आपको ना, हम उनसे कुछ पैसे लेंगे, लेकिन अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम उनको पे करेंगे। तो हमारी नॉर्मली ये है कि हमने डिसाइड किया हुआ कि हमारी ना हम ग्रिड में सेल आउट नहीं करेंगे यूनिट। तो हमारा ये है कि एट द एंड ऑफ ईयर जो है ना हमारी जो भी यूनिट्स हैं वो हमें बिल थोड़ा बहुत आता है, लेकिन ज़्यादातर अगर नेगेटिव में रहते हैं ना तो वो हमारे एडजस्ट होते हैं। तो लेकिन अगर आपका बड़ा सिस्टम है, आप एज आ IPP ऑपरेट करें, फिर आपका जो टैरिफ डिसाइड होगा ना आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्लस आप जो सेलर है उसके दरमियान में, फिर आपको उस हिसाब से वो पैसे पे करते हैं। लेकिन अगर आपकी नेट मीटरिंग है कि आपका लोड भी है और आप जनरेट भी कर रहे हैं, फिर आपका यूनिट्स एडजस्टमेंट है, लेकिन उसमें आपको टैरिफ आप डिस्को आपको ना ऑफ पीक के हिसाब से जो ऑफ पीक का चल रहा होता है ना रेट, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आपको पैसे देती है। मतलब वो ऑफ पीक में, क्योंकि ऑफ पीक में हमारी जो जनरेशन है वो होती है ऑफ पीक में है। आपको पता है कि जो ऑन पीक आवर्स है ना वो नॉर्मली 7 to 10 चलते हैं मतलब गर्मियों में, और सर्दियों में 6 से लेके 9 बजे तक सर्दियों में चलते हैं। सर ये हम मैक्सिमम कितने इन्वर्टर यूज कर सकते हैं 125? इसके लिए ना देखें, आपने कैपेसिटी है 125, आप 20 के यूज़ करेंगे तो आप 5 करेंगे 20 किलोवाट के, 25 के करेंगे 20 के करेंगे तो आप 6 इस्तेमाल करेंगे, मतलब 120 किलोवाट उस तरह बनेगा। अगर 25 के करेंगे तो फिर आप 5 इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उससे बड़े करेंगे तो फिर आपकी नंबर ऑफ इन्वर्टर्स कम होते जाएंगे, लेकिन आपकी पावर फिर भी बढ़ती जाएगी। आपका जो इन्वर्टर है वो 1 किलोवाट से लेके जो है ना आपका नॉर्मली 1 मेगावाट तक चला जाता है, लेकिन वो फिर आपका सिस्टम भी सोलर का 1 मेगावाट कैपेसिटी में अबाव होता है। 500 किलोवाट के भी अवेलेबल हैं, 250 किलोवाट्स के भी अवेलेबल हैं, मतलब 100 किलोवाट के भी अवेलेबल हैं, 750 के भी अवेलेबल हैं, 1250 किलोवाट के भी अवेलेबल हैं। सर जी हमारे पास 7 है जी जी 17 का है, तो ये हमारे पास टोटल तो 119 बनती है। हाँ, वो इस वजह से थोड़ी सी ना इसका कन्वर्जन फैक्टर आप 1 भी रख सकते हैं, लेकिन लेस दैन 1 भी अलाउ है, क्योंकि आपकी जनरेशन जो है ना 125 किलोवाट कभी भी 100% आपको नहीं मीट होगी।
कोई इंस्टेंटेनियस कुछ सेकंड्स आएंगे वो आपको अवेलेबल होंगे आइडियली, लेकिन नॉर्मली तौर पे आपकी जनरेशन जो है वो 110 मैक्सिमम 100 तक जाती है। 100 नहीं 125 से नहीं हो सकते वो तो आइडियली भी 125 से अचीव करना बड़ा मुश्किल है। ये जो 125 है ना, ये भी रखेगा कि स्टैंडर्ड कंडीशन में है। 25 डिग्री टेम्परेचर हो, आपका रेडियंस जो है वो 1000 वाट पर स्क्वायर मीटर हो, और आपका ये 2-3 चीज़ें हैं, और टिल्ट एंगल है वो भी एक वो आइडियली बताते हैं। वो 3 चीज़ें आप मीट करेंगे फिर आपकी वो आती है, और वो भी लैब में आती है आपकी जनरेशन इतनी मैक्सिमम, मतलब 270 मतलब अचीव हुई है, लेकिन 120 इस तरह 119 किलो वाट तक सिस्टम हमारा गया है, लेकिन वो भी चंद सेकंड के लिए जाता है। एवरेज जो जनरेशन है ना वो हमारा नॉर्मली एक ये 125 जो है ना तकरीबन 190 किलो वाट 105-10 तक। अभी क्योंकि इसको टाइम पीरियड होगा तो डिग्रेडेशन की वजह से इसकी जनरेशन कम है थोड़ी सी। सर ये आप इसको ऑफ क्यों कर देते हैं? जब आप ग्रिड ऑफ होता है तो सर आप इस पर भी लोड सेट कर दिया करें जितना। नहीं ये नहीं हो सकता, ये ना इसकी एक प्रोटेक्शन है इन्वर्टर्स की। ये आपका ना जो भी आपका जनरेशन सिस्टम होता है ना, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो आपको एक कोड देती है, ग्रिड कोड पे आपने इंप्लीमेंट करना होता है कि आपका जनरेटर जो है ना, ये ना हो कि ग्रिड ऑफ हो तो आप वहाँ पे बिजली देना शुरू कर दें। जब आप वहाँ पे बिजली देना शुरू करेंगे तो फिर आपका जो कोई मेंटेनेंस चल रही है, कोई रिपेयर चल रहा है, वहाँ पे वो फिर काम हो जाएगा। तो वो आपको इसलिए ग्रिड में आप रिवर्स नहीं करते लोड शेडिंग में। उसका यह है कि आप बैकअप लगा के आप इंटरनली इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जिस तरह 250 किलो वाट का हमारी डेटोनेटर फैक्ट्री है हतार में, वहाँ पे हमारा 250 किलो वाट लगा हुआ है। वहाँ पे वो ग्रिड के साथ भी कनेक्ट है और साथ ही हमने यूटिलिटी जनरेटर लगाया हुआ है उसके पैरेलल में। अगर हमारी वापडा ऑफ होती है तो जनरेटर इसको पावर्स देता है इसको अपना इन्वर्टर को, और उससे जो है फिर हमारा लोड चलता है अगर हमने लोड कनेक्ट किया हुआ है। लेकिन वो सिर्फ हम अपने लोड को दे सकते हैं, हम वापस वापडा में नहीं दे सकते। मतलब वापस वापडा में देंगे वो बड़ी एक वो बड़ा एक आप कह लें कि आप पे मुकदमा हो सकता है बहुत बड़ा। सर्दियों में इसकी जनरेशन कितनी? सर्दियों में कंपैरेटिवली कम होती है क्योंकि सन आवर जो है ना कम होते हैं सर्दियों में। लोड लेकिन आजकल हीटिंग की वजह से इंडस्ट्रियल पे तो उतना रहता है, लेकिन कमर्शियल रेजिडेंशियल पे कम। ये पता नहीं इसका ना ये थोड़ी सी हमारी रिपेयर मेंटेनेंस चल रही है, इसकी एक आधी स्ट्रिंग ना बीच में से ऑफ है, तो मे भी उसका 0-0 उसका आ रहा है। जी जी एट द एंड ऑफ ईयर जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपने ज़्यादा यूनिट वापडा को सेल किए होते हैं या खरीदे हुए होते हैं? एवरेज है, हमने जो डिज़ाइन किया था वो ये था कि हमारा बिल 0 आए। हम मतलब ये है कि हम ना उनसे बल्कि ले ही रहे हैं, उनको दे नहीं हम उस तरह रहे, क्योंकि हमारी कैपेसिटी उस तरह की नहीं है ना। प्रॉफिट देखें ये हमारा अगर लेट्स से कि पहले बिल आता होता था 10 लाख का, अभी आता है 2-3 लाख का, तो ये 7 लाख जो है हमारा प्रॉफिट है ना। हाँ आइडली 1 लेकिन 0.95 प्लस इसका है, क्योंकि इसमें इंडक्शन लोड तो नहीं है, ये तो जनरेटर है बेसिकली, तो इस वजह से आइडली ये सप्लाई 1 पे करता है, लेकिन 0.95 से अबव जो है ना प्लस में लिया जाता है। सर ये आप वापडा से ना ले अपना सिस्टम इतना बड़ा कर दें कि जो 2 लाख वर्ती उनको उसमें भी आपको ना एक हाइब्रिड सिस्टम लगाना पड़ेगा, आपको बैकअप के लिए जनरेटर साथ लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बैटरी वगैरह लगाएं तो एक इन्वर्टर के लिए कितनी बैटरी लगानी पड़ेगी उसकी वोल्टेज का सेटअप? बैटरी के लिए तो आपकी पूरी सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ेगा आपको, मतलब इन्वर्टर हम लेते हैं 5 किलोवाट का, हाँ 48 वोल्ट तक हम बैटरी कनेक्ट करते हैं। हाँ इसके लिए हम कितनी बैटरी कनेक्ट करेंगे तो सिस्टम रात को भी चलेगा? ये वैसे सिस्टम हमारे फ़ायदे का नहीं होगा, क्योंकि बैटरियों की जो कास्ट है ना, एक आपकी 200 लेड एसिड वाली बैटरी वो तकरीबन 30,000 की है, 38-30 प्लस है, और जो आपकी ड्राई बैटरी है वो 50 प्लस है। तो वो फिर पूरी डिज़ाइनिंग है कि आपके कितने आपकी रिक्वायरमेंट है। 10 साल तक क्लेम होती है कि वो चलाते नहीं चलाते, वो उनकी वारंटी साल की वो देते हैं, उसके बाद वो क्लेम तो करते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि ये कंडीशन आप मीट करेंगे तो चलाएंगे। तो नॉर्मली आप देखेंगे आपकी मोबाइल की अच्छी बैटरी, आपका एप्पल आईफोन है बेहतरीन किस्म का, लेकिन उसमें भी आपको देखें कि बैटरी 5-6 साल बाद आपको कंप्लेंट देना शुरू हो जाती है। तो ये सेम टू सेम भी उसी में है। लगाते भी हैं तो 5 साल में हमारे पैसे तो पूरे हो जाते हैं हमसे। नहीं जनरेशन के पूरे हो जाते हैं, लेकिन आपका जो बैटरी का बैकअप है ना, इससे तो सिस्टम हमारा आपकी जो कास्ट है ना वो 150 नहीं आएगी फिर तो पर वाट, वो आपकी मे भी 250 तक चली जाए कास्ट बैटरी लगा के। और उसके बाद ये है कि 5 साल के बाद फिर आप बैटरियों का खर्चा भरेंगे, फिर आप उसको देंगे, वो पे बैक आपका 5 साल नहीं रहेगा, फिर वो मे भी आपको अचीव हो ही ना।
क्योंकि आपका एक बैटरी वाला खर्चा आपका सेपरेट में आपका चल रहा है। तो सर कितने वोल्ट पे ये चलता है बैटरी पे? बैटरी पे नॉर्मली जो है 12 वोल्ट पे भी चलता है, 24 पे भी, 48 वोल्ट पे भी चलता है। तो 12 पे नहीं चलता हमारे पास। नहीं ये 1000 वोल्ट सिस्टम है हमारा। जो 12-24 है ना, ये रेजिडेंशियल लेवल पे, छोटे लेवल पे जो है ना वो 24 वोल्ट 48 वोल्ट ये वहाँ पे चलते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे ऑन ग्रिड सिस्टम में आपका सिस्टम वोल्टेज जो है ना 1000 वोल्ट्स या 1500 वोल्ट्स आपके कंसिडर करते हैं। कौन कौन सा लोड कनेक्टेड है? इसमें लोड सारा कनेक्ट है, इंडक्टिव भी है, कैपेसिटिव तो कम है, इंडक्टिव ज़्यादा है। पंखे, कंप्रेसर, जो एसी है इसमें भी छोटा सा कंप्रेसर होता है, वो भी इंडक्टिव लोड ही है। तो बाकी जो लाइटनिंग वगैरह है वो आपकी कह लें कि रजिस्टिव लोड है। इसमें जो अभी एक 175 या 270 की एक प्लेट है जी जी, अब धूप पड़ रही है उसके ऊपर 32 वोल्ट के ऊपर वो प्लेट एक प्लेट जी हाँ, आउटपुट जो है वो 32 वोल्ट्स जो उसका है ना रेटेड करंट, रेटेड वोल्टेज, इसके वोल्टेज चेंज होंगे या करंट चेंज करंट करंट वोल्टेज आपके ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। वीओसी बल्कि आपके करंट कम, जब पावर कम हो रही हो ना तो वीओसी ज़्यादा ही होते हैं, तो आपका जो है ना करंट चेंज होता है, वोल्टेज नहीं। जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो करंट से है, वो आपकी चेंज होगी। सर इसमें जो वो वोल्टेज तकरीबन सेम रहते हैं, वोल्टेज में वेरिएशन नहीं है। जो पैनल है वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और जो स्ट्रिंग है वो आप 3-3 के पैरेलल हाँ उसमें स्ट्रिंग नॉर्मली जो इन्वर्टर पे ना वो पैरेलल में आ जाती है सारी। तो पैनल जो है ना वो आप सीरीज पैरेलल दोनों कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये भी हो सकता है कि आप 10 पैनल आप सीरीज में लगाएं, 10 पैरेलल में लगा के आप आउटपुट पे ले आएँ, लेकिन वो डिपेंड अपॉन सिस्टम। हमारे सिस्टम में 22 हमने सीरीज में लगाई है ताकि हमारा सिस्टम जो है ना वो 1000 वोल्ट से कम हो, तो इसलिए हम जो है ना उसको करते हैं। हाँ, और उसमें भी आप जब डीप डिज़ाइनिंग में जाते हैं ना, फिर आप जो जब आप प्रोजेक्ट कोई लगा के किसी को दे रहे हैं, फिर आप डिसाइड करते हैं कि आपकी केबलिंग भी आपकी बचत हो, ताकि स्ट्रिंग पैरेलल इस तरह लगाए कि आपकी केबल भी कम से कम इस्तेमाल हो, उसमें फिर आप कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम वोल्टेज आपका जो है वो आपने उसको रखना है ज़हन में। उस पर ये नहीं होना कि 1500 वोल्ट्स का आपका सिस्टम है, आप उस पर 2000 वोल्ट नहीं दे सकते, ना 1600 दे सकते हैं, ना बल्कि 1500 पूरे भी ना दें। वो भी सेफ्टी यही कहती है कि आप लेस दैन 1400 वोल्ट्स आप उस पर सिस्टम अप्लाई करें, ताकि आपकी जो केबल है ना उस पर भी हाई वोल्टेज जो है ना इंसुलेशन फेलियर का बायस बनते हैं। सर अगर बैटरी में कोई फॉल्ट आ जाए तो आप मेंटेनेंस खुद कर सकते हैं या फिर नहीं इन्वर्टर में ना इसके वैसे तो इसकी 5 साल वारंटी थी, वो तो माशाल्लाह पूरी हो चुकी है। तो अगर उसके 5 साल के अंदर अंदर आपको इशू आ जाए ना तो फिर तो आपकी मैन्युफैक्चरर आपको करेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की आपको पता है कि वारंटी क्लेम नहीं होती अगर आप उसको खुद खोल के उसको रिपेयर करना शुरू कर दें। ठीक है, अगर आपने रिपेयर 5 साल के बाद है फिर आप उसको खोल के रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन रिपेयर के लिए भी जो स्पेयर पार्ट्स आपको चाहिए होते हैं बेसिकली। आपको पता है कि स्पेयर पार्ट भी इस चीज़ का जो है हर कॉलेज रोड पे या किसी पे अवेलेबल नहीं होगा। इसका भी कोई जो उनके डीलर हैं अथोराइज उनके पास होंगे, तो वहाँ से लेके आप रिपेयर खुद भी कर सकते हैं या उनसे भी करवा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली तौर पे उधर से ही करवाया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्ड है, इसको रिपेयर करने के लिए ना स्पेशल टूल्स और ये इक्विपमेंट चाहिए होता है। वो मतलब हर बंदा अफोर्ड नहीं करता या रखता भी नहीं है। सर ये कब से लगे हुए हैं? 2014 हाँ जी, 2014 के मिड में। 8-9 साल हो गए। जी 8 साल से ऊपर हो गया। सर अभी आप कह रहे थे कि इसमें कोई फॉल्ट है तो ये आप खुद ही मेंटेनेंस करें? नहीं, फॉल्ट इसमें ना एक होता है इन्वर्टर का अपना फॉल्ट आ जाए, उसमें तो एक अलग चीज़ है। अगर एक आती है कि आपकी कोई केबल कोई बीच में डैमेज हो गया, कोई शॉर्ट सर्किट है, कोई आपकी जो इसकी वोल्टेज एम्पेयर की सेटिंग है उससे अबव हो गया काम, फिर ये ट्रिप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, खुद सेंस करेगा, सेंस भी करेगा, ट्रिप भी करेगा। वाली साइड में तो सिल्वर फेज शो हो रहा है, वो मतलब लाइन टू न्यूट्रल ले रहा, कोई इशू नहीं है। हाँ, ये आपकी इंस्टेंटेनियस पावर है, नीचे जो है इसके यूनिट्स हैं किलोवाट आवर। हाँ जी, और नीचे जो टोटल के जब से ये सिस्टम ये इन्वर्टर आना है तब से यूनिट इसमें जनरेट 3 नहीं है, टोटल स्ट्रिंग है 21 है, 21। हाँ 22 को आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपको देखेंगे आप कितने आपके बनते हैं। 22 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 21 से करें ना, एक स्ट्रिंग में एक पैनल ज़्यादा है, वो 60 एक स्ट्रिंग में वोल्टेज जो है वो तकरीबन जो है वो हमारे बनते हैं, बल्कि आप मल्टीप्लाई करें 22 को 30 से, ये तकरीबन 500 to 600 बनते हैं। लोड में जो है वो वोल्टेज कम हो जाएंगे, जब ये इसके एम्पेयर कम होंगे वोल्टेज, फिर ओपन सर्किट वोल्टेज जो है ना वो ज़्यादा होंगे। सर ये 125 कैसे बनता है? ये 270 को आप 463 से मल्टीप्लाई करें, 463 पर एक पैनल ये आपको देखें कि ये आ गया वाट्स में, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोवाट आ जाएगा।
ग्राफ जो है ये बेसिकली इसकी ना मैक्सिमम पावर को शो कर रहा है कि इसके इतने किलोवाट जो है ना ये इस पे गया है या इसकी जनरेशन है कोई मतलब उसकी ये वैल्यू है। सर ये इन्वर्टर वाला रूम है सर, इसका टेम्परेचर है कितना रखना है रूम टेम्परेचर? आइडली जो है ना आपका एग्जॉस्ट भी इस्तेमाल करते हैं या एसी इस्तेमाल करें ज़्यादा बेहतर है। एसी में यह है कि आपकी नमी भी नहीं होती उस रूम में और आपका टेम्परेचर भी अच्छा रहता है। गर्मी और सर्दी गर्मी से इसकी ना जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है वो डैमेज हो सकते हैं। बाकी इसको एफिशिएंसी का इशू नहीं है, लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स है ना उसकी लाइफ कम हो जाएगी अगर बहुत ज़्यादा हीट हो। तो यह कि एग्जॉस्ट फैन लगाएं ताकि टेम्परेचर मेंटेन सर। अब बाकी सब में देखें तो कनेक्शन दिए हैं, इसमें 2 वायर डाली हुई हैं सर। इसको एक सिंग उतरी है, ये मेंटेनेंस चल रही है ना, ये देखिए उसके पहले 0 आ रहा था, 169 हो गया। ये तीनों का आ रहा है, तीनों का सही। ये देखें 2 का आ रहा है, 1 का नहीं आ रहा। हाँ ये है सर, ये मीटर खराब है, बार-बार हाथ इसना मार के। नहीं ये इसको सेंसर है बेसिकली इसकी लाइट ऑन करने के लिए। और यूँ जिस तरह ये है ना अभी इसको करेंगे इसकी लाइट ऑन हो जाएगी। पैनल्स की वारंटी कितनी होती है? 25 ईयर्स ऑपरेशन। हाँ जी। कि कौन सी कंपनी के पैनल हैं? ये है जिंगली के। तो आजकल JA, ट्रीना, कैनेडियन सोलर इस तरह की कंपनीज हैं। ये चाइनीज़ कंपनी? सारी मैक्सिमम चाइनीज़ हैं। पैनल्स में मैक्सिमम चाइनीज़ हैं, इन्वर्टर में भी अच्छे इन्वर्टर भी चाइनीज़ के हैं कंपनीज। तो लेकिन ये हमारा क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट था तो इसमें हमने जो इन्वर्टर है वो SM में जर्मनी के इस्तेमाल किए हैं। तो ये है, लेकिन जिस तरह आपका मोबाइल में एप्पल है, SM में वैसे ही इन्वर्टर्स में एप्पल है, तो उसकी कास्ट बाकियों से ज़्यादा होती है। लेकिन चाइना के भी अच्छे अवेलेबल हैं, मतलब जिसमें हवावे है, सनग्रो है। सनग्रो के बहुत अच्छे इन्वर्टर हैं, तो मतलब आपकी कम प्राइस में आपको अच्छी देते हैं, सर्विसेज भी अच्छी देते हैं उनकी और कास्ट भी कम है। जो हमारा 1 मेगावाट है वहाँ पे हमारा सनग्रो ही कर रहे हैं और उसको भी तकरीबन माशाल्लाह 6 साल हो गए हैं, तो इस तरह का कभी इशू नहीं आया वहाँ पे भी। अरे ये जो पैनल जो है ये इसको खुद भी चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? पैनल को, ये इन्वर्टर को हाँ, इसको सोर्स चाहिए। पहले तो ये सेंस करेगा AC को, सबसे पहले ये AC को देखेगा। AC को जब इसको डिपेंडेबल सोर्स मिलेगा फिर आप उस पर DC के लगाएंगे, फिर ये एनर्जाइज होगा। कितनी कंज्यूम करता है एक इन्वर्टर? इसकी अपनी एफिशिएंसी है, इसकी कन्वर्जन अपनी खुद एफिशिएंसी की, मतलब वाटेज में कुछ 45 वाट या इस तरह की इनकी अपनी कंजम्पशन है। लेकिन कहाँ से इनपुट आ रही है अगर इसके अलग? इसकी सोलर से आ रही है और इसकी AC आउटपुट है। हाँ AC आउटपुट है, लेकिन सबसे पहले अगर आप AC लगाएंगे तो ये ऑन होगा। DC आप बेशक लगाते रहे कुछ भी नहीं होगा। ये AC ये है, ये ग्रिड से जो वोल्टेज है ना ग्रिड, उसको सबसे पहले ये मॉनिटर करेगा, उसके बाद जो है ये फिर इनपुट लेगा। मतलब पहले जो है इसको ऐसे मिला, फिर ये ऑन हुआ, फिर इनपुट लेके फिर इसने दोबारा जी हाँ जी बिल्कुल। तरीका नहीं हम AC के बगैर चला लें। अब हमारे पास वैसे जगह हो, हमारे पास सोर्स हो। नहीं वो फिर इन्वर्टर नहीं है, वो फिर आपकी डायरेक्ट DC अपनी वही है, चार्ज कंट्रोलर लगा लें छोटा सा एक, उससे आप आउटपुट ले लें। स्टेबल वोल्टेज और बल्कि स्टेबल वोल्टेज ही स्टेबल देता है, करंट चले वेरी होता है अकॉर्डिंग टू लोड। चार्ज कंट्रोलर होता है छोटा सा, लेकिन वो छोटे सिस्टम के लिए है, बड़े सिस्टम के लिए उस तरह का सिस्टम नहीं है कि हम डायरेक्ट इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी जनरेशन इफेक्ट होती रहती है। जैसे कि बादल आ गए, आपकी जनरेशन 100 से कम होकर 20% पे आ जाएगी, तो उस वक्त आपका लोड तो कनेक्ट है, लोड को तो पावर चाहिए डिपेंडेबल। अगर उसको नहीं मिलेगी ट्रिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपका सिस्टम फिर मतलब काम का नहीं है। इसको इसीलिए ना जो ऑन ग्रिड सिस्टम है या हाइब्रिड है उसमें डिपेंडेबल सोर्स चाहिए इसको लाजमी। यानी ये जो ब्लैक वायर आ रही है बेसिकली ग्रिड से कनेक्टेड है, ग्रिड से कनेक्टेड है, 30 वोल्टेज यहाँ पे दे रही है। जी जी। और जो है फिर ये यहीं पे ग्रिड से कनेक्टेड है। हाँ यहीं से ग्रिड पे कनेक्टेड है। फिर ये सप्लाई पावर का जो है ना ये फ्लो हो जाएगा। पावर हमेशा आप देखें कि हाई से लो की तरफ मूव करती है, जिस तरह पानी है ना हाई प्रेशर से लो की, कभी ये नहीं हो कि पानी ऊपर चढ़ के यूँ छत पे चला जाए, ऊपर से और नीचे आ जाएगा। तो पावर भी जो है ना वो फिर इसमें यह है कि ये हाई खुद हाई प्रेशर पे हो जाता है, ये हाई वोल्ट अपनी हाई पावर पे, ये फिर आपको ग्रिड में चला जाता है। और जो हमारा लोड भी कनेक्ट होता है वो भी लो प्रेशर पे होता है। ग्रिड हाई प्रेशर है और जो हमेशा करंट जो है वो लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। लोड जो है वो लो रेजिस्टेंस पाथ है, तो हमारी जो जनरेशन है ना वो भी फिर पहले लोड में जाएगी। अगर लोड हमारा बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो है, फिर जो है ग्रिड की तरफ जाएगी। ये भी मतलब आप एक आउट भी तो सारी देर से ही होता है। हाँ ये आउट है, ये बेसिकली इसकी मतलब इन आप ये कि DC इन है, इसकी ये आउट है AC साइड। लेकिन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको AC लगानी पड़ेगी, AC के बाद इसको DC देंगे तो ये सेंस करेगा। ये AC की है, ये वाली इन भी यही है। जब ये ज़ीरो पोटेंशियल पे होगा तो फिर ये इसका ये बन जाएगा, इसको इन देगा। लेकिन जब ये एनर्जाइज हो जाएगा, जब DC इसको मिलना शुरू हो जाएगी तो ये फिर हाई प्रेशर पे होगी, ये लो पे हो जाएगी, क्योंकि लोड तो नहीं है ये बेसिकली इतना, ये फिर आपका आउट बन जाएगी ये वाली। सर ये एक पैनल पड़ा होगा, इसमें क्या फॉल्ट है?
ये मेरे ख्याल स्पेयर है या कोई पीछे डैमेज भी हुआ था एक हमारा पैनल, ये कि स्पेयर भी हमने रखा हुआ है। ये कुछ स्पेयर आप रख सकते हैं कोई इस तरह, मतलब सर नेट मीटरिंग कहाँ हो रही होगी? मतलब नेट मीटरिंग ना वावडा पे एक मीटर लगा होता है बाई डायरेक्शनल, जिस तरह का आपका रेजिडेंशियल लेवल पे 3 फेज मीटर होता है ना, वो होता है यूनि डायरेक्शनल। लेकिन जो सोलर हमारी जनरेशन है वो उसमें बाई डायरेक्शनल मीटर एक लगाते हैं। उसमें प्रोग्रामिंग का इशू मतलब होता है कि जिस तरह आप देखते हैं कि आपका लोड आपका है और उसके साथ ये है कि फिर उसके दोनों तरह के उसमें रजिस्टर इस्तेमाल होकर ना दोनों तरफ की उसकी कम्युनिकेशन हो रही होती है। मतलब जितनी हमारे यूनिट जनरेट होते हैं, जितने हमने इस्तेमाल किए, वो दोनों उससे मीटर बाई डायरेक्शन उससे मिल जाता है। नेट पे आप देखेंगे आपको उसकी बड़ी साफ डिटेल मिल जाएगी। इसमें करंट का क्या है, मतलब 8.85 लिखा हुआ था। हाँ। इसका मैक्सिमम करंट जी जी। वो जनरेट होता है। सर हाँ। इसका करंट इंक्रीज डिक्रीज कितना ये कर सकता है? इसका जो करंट है ना वो आपका देख लें कि करंट जो है वो आपका मैक्सिमम 8.85 है आइडियल कंडीशन में, और बाकी इसका 8 से कम ही रहता है। मतलब जब बिल्कुल सूरज नहीं है तो 0 हो जाएगा, कम है तो 1 आ जाएगा। इस तरह मतलब वेरी करता है। 0 है सुबह जब सूरज तुलू होता है, जब गुरूब होता है उसमें वो 0 से स्टार्ट करता है, मैक्सिमम पे जाके फिर डिक्लाइन होके 0। लेकिन 8.85 से ऊपर नहीं जाता कभी भी, वो आइडियल कंडीशन में जा सकता है, उसमें फिर हमें पावर मैक्सिमम मिलती है। मैक्सिमम जो है ना हमें 120 किलोवाट सिस्टम मिला है, लेकिन वो भी इंस्टेंटेनियस होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आइडियली तौर पे 110-100 तक हमारा ऑपरेट करता रहा है पीछे। ये 8.85 करंट जो है एक पैनल का है या एक पैनल का? जी जी। लेकिन यह है कि वो सीरीज़ में ऐड है, सीरीज़ में आपको पता है करंट सेम रहता है, तो इसकी इनपुट पे सेम आएगा। लेकिन जब ये 3 पैरेलल में हो गया तो 8 2 × 3 तो 24 एम्पियर जो है ना ये बन जाएगा। ये कम है ना, ये आइडियल नहीं है, ये एक्चुअल में है। मतलब जो मैक्सिमम मतलब जो भी जनरेट हो रहा है ना वो उस हिसाब से है। जब ज़्यादा अच्छा होगा तो फिर मतलब 8 वो आइडियल है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। ISC वो आप देख रहे हो, ISC नीचे लिखा होगा स्टैंडर्ड कंडीशन। वोल्टेज को कांस्टेंट कैसे रखा है इन्होंने इस पैनल में? इसका वोल्टेज आप हमेशा देखें कि आपका जो जिस तरह कुछ सेल होता है ना छोटा DC वाला, वो को वोल्टेज कांस्टेंट करता है, और जो वो एक्सपायर होता है वो वोल्टेज कम एम्पेयर उसके जब जैसे जैसे इस्तेमाल होते हैं फिर वो उसका होता है। जी जी। ये 400 लिखा होगा 500 आ रहा है 500 नहीं ये 400 है, ये बेसिकली DC 500 वोल्ट है। जो AC है वो आपका 400 वोल्ट है, वो आप देखिए कि 230 के करीब होगा या 225। हाँ वो मतलब जिस तरह वो हमारी सप्लाई है ना वो है ये, मतलब इसकी जो आउटपुट है वो फेस टू फेस 230 जो है वो फेस टू न्यूट्रल मतलब है। ये बेसिकली इसका ब्रांड है, ये मतलब उसके साथ स्पेक्स में मैक्सिमम वोल्टेज एम्पेयर ये उसकी लिखी होती है, एफिशिएंसी भी मेंशन होती है। सर इसके कोई ड्रॉबैक्स भी हैं सोलर की, कोई आपकी नज़र में कोई हो? यार ड्रॉबैक्स कुछ ये है कि आपका एरिया कोई कास्ट के वाइज थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा भी महंगा है, तो बाकी यह है कि इसकी मतलब डिपेंडेबल सिस्टम उस तरह नहीं है, थोड़ा सा वो इश्यूज़ हैं। लेकिन यह है कि एक अच्छा सोर्स है ग्रीन एनर्जी सोर्स, उसमें प्लस दोनों फ़ायदे हैं आपके। तो लेकिन जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अभी तो 5 साल का पे बैक है, तो वो सिस्टम अच्छा है आपका, मतलब काफ़ी हद तक मतलब 5 साल में पैसे आपके पूरे हो जाते हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने माशाल्लाह बड़े पेशेंस से सर